we say Ward-Leonard method of speed control. See, Ward-Leonard method of speed control is basically a voltage control technique. Means Ward-Leonard method of speed control जो है प्राइमरीली एक वोल्टेज कंट्रोल टेक्निक ही है जिसके तहत मोटर के स्पीड को कंट्रोल किया जा सकता है। अब इस Ward-Leonard सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट से आप मोटर के स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं बोथ below the rated speed as well as above the rated speed. Means with this arrangement you can able to control the speed of motor over a wide range. Means you can have the wide range control action of the motor if you are employing the Ward-Leonard system of arrangement for controlling the speed of motor. See, Ward-Leonard system of arrangement में एक 3-phase इंडक्शन मोटर और सिंपली 3-phase इंडक्शन मोटर 3-phase मोटर है। इट कैन बी 3-phase इंडक्शन मोटर एज वेल एज इट कैन बी 3-phase सिंक्रोनस मोटर which is to be supplied from the 3-phase AC mains and is allowed to run at constant speed. And the shaft of the 3-phase motor is to be connected to the generator. एक डीसी जनरेटर होगा जिसका शाफ्ट से मैकेनिकली कपल किया जाएगा 3-phase AC मोटर्स के शाफ्ट को, सो दैट 3-phase AC मोटर जिस स्पीड पर रन करेगा उसी स्पीड पर जनरेटर का भी शाफ्ट और जनरेटर भी मूव करेगा। जैसा कि बताएं 3-phase मोटर्स यूज करने का पर्पस बस यही है सो दैट द जनरेटर कैन बी और कैन रन एट कांस्टेंट स्पीड। सो जनरेटर का स्पीड को कांस्टेंट रखना है ना। एक मोटर डीसी मोटर है having the speed is to be controlled और whose speed is to be controlled। एक डीसी मोटर है जिसका की स्पीड को कंट्रोल करना है जिसके शाफ्ट से एक मैकेनिकल लोड जो है मैकेनिकली कपल है। ओके, नाउ द आर्मेचर ऑफ डीसी मोटर is connected across armature of DC generator। डीसी मोटर का जो आर्मेचर है वो डीसी जनरेटर के आर्मेचर से इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड है। दे आर अक्रॉस टू ईच अदर मींस दे आर पैरेलल टू ईच अदर। कहने का मतलब जो कुछ भी जनरेटर का वोल्टेज होगा जनरेटर टर्मिनल वोल्टेज वही वोल्टेज जो है मोटर का टर्मिनल वोल्टेज होगा और मोटर के आर्मेचर के क्रॉस अप्लाइड वोल्टेज होगा। मींस अगर इस Vt में वेरिएशन होगा देन अप्लाइड वोल्टेज टू द मोटर में भी क्या होगा वेरिएशंस होगा। अब देखिए दो डीसी जनरेटर है और जो डीसी मोटर है दोनों के फील्ड वाइंडिंग्स को सेपरेटली एक्साइट किया गया है बाय एम्प्लॉयिंग अ सेपरेट सोर्स और सिंपली बाय अ डीसी बस। डीसी बस मींस a system having the voltage is always constant। Okay, now see this is your field winding of DC generator, this is your field winding of DC motor। aim क्या है motor whose speed is to be controlled, Z is generator DC generator and this DC generator's terminal voltage is same as the armature voltage of the motor or whatever the generator terminal voltage of this generator, the same voltage is to be applied across the armature of motor whose speed is to be controlled, जिसका speed को control करना है। See, field winding of generator or field winding of motor can be or field winding of a generator or field winding of motor are separately excited here and the current flowing through the field windings can be adjusted by adjusting these regulators। Means IFG जो IFG क्या है IFG is the current flowing through field winding of generator, IFM is the current flowing through field winding of motor। IFG और IFM को आप एडजस्ट कर सकते हैं और एडजस्ट करने का इनको प्रोविजन होगा by adjusting these regulators or by adjusting these rheostats or resistors। These resistors are represented here REG
G for generator, M for motor. Okay. ना अब बात करेंगे how to control the speed by using or a speed of the motor M by using the Watt-Leonard system of arrangement. Before that, please you do remember some terminology here in Watt-Leonard arrangements. You please do remember some terminology like the three-phase motor and DC generator combination is termed as or combinedly considered as MG set. The combination of three-phase motor and a three-phase AC motor and DC generator is combinedly known as MG set or is called MG set. And M here is your the motor, the DC motor whose speed is to be controlled. Now, if you want to control the speed below the rated value, आपको कंट्रोल करना है मोटर के स्पीड को below the rated value with this Watt-Leonard system of arrangement. Then obviously voltage control technique would be employed. How the voltage control technique is achieved here with this arrangement? Let's see please. So पहली बात यहाँ पे बोले कि Watt-Leonard system of arrangement से अगर आपको मोटर के स्पीड को कंट्रोल करना हो below the rated value, then which method is to be applied or which method is to be employed? Voltage control technique is to be employed. और वोल्टेज कंट्रोल टेक्निक अब कैसे अचीव करेंगे यहां पर इस अरेंजमेंट के तहत देखिए प्लीज. से दिस वोल्टेज इज अलाउड टू एडजस्टेड. ये वोल्टेज Vt को जो कि मोटर के आर्मेचर के अक्रॉस अप्लाइड है उसको वेरी कराना है. और ये जो Vt है वो जनरेटर का भी टर्मिनल वोल्टेज है, जनरेटर टर्मिनल वोल्टेज है. इस Vt को वेरी करा सकते हैं by varying what the field flux of the generator. जनरेटर के फील्ड फ्लक्स को वेरी करके जनरेटर का जनरेटर टर्मिनल वोल्टेज को वेरी करा सकते हैं, एडजस्ट करा सकते हैं और वही करेंगे भी यहां. सो फॉर एम्प्लॉइंग द वोल्टेज कंट्रोल टेक्निक, particularly for obtaining the speed control action below the rated speed, the generator terminal voltage Vt is to be adjusted by varying the field current or field flux of generator. So see here please, for below the rated speed, which method is to be employed? Voltage control technique is employed. अब वोल्टेज कंट्रोल टेक्निक एम्प्लॉय करने के लिए करना क्या है? Vt को वेरी करना है. मींस Vt इज सब्जेक्टेड टू वेरी. Vt को वेरी करने के लिए जनरेटर के फील्ड फ्लक्स को वेरी कराना है. मींस जनरेटर के फील्ड वाइंडिंग के थ्रू फ्लो करने वाला करंट Ifg को वेरी कराना है जस्ट बाय वेरिंग द रेगुलेटर Reg. सो Reg को एडजस्ट करके Ifg को एडजस्ट करना है. मींस Ifg is to be adjusted just to adjust what? phi g. So phi g for जनरेटर के फ्लक्स को वेरी करने के लिए Ifg को वेरी करेंगे so that phi g वेरी होगा तो Vt वेरी होगा. Vt क्यों वेरी होगा? You know Eg is proportional to phi into स्पीड. मींस फ्लक्स इनटू स्पीड. स्पीड क्या है? स्पीड कांस्टेंट है जनरेटर का, बिकॉज पहले बोले थ्री फेज मोटर यूज करने का पर्पस ही है कांस्टेंट स्पीड को मेंटेन करना. सो स्पीड कांस्टेंट है, फ्लक्स को आप एडजस्ट कर रहे हैं. एडजस्टिंग द
IFG which is done by adjusting this REG regulator. So EG क्या होगा, एडजस्ट होगा, EG एडजस्ट होगा, VT एडजस्ट होगा, VT एडजस्ट होगा, मींस वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द आर्मेचर ऑफ मोटर भी क्या होगा, एडजस्ट होगा, मींस वेरीइंग होगा। अब ये वोल्टेज को घटाने का प्रोविजन होगा, रेटेड वैल्यू से बढ़ाने का प्रोविजन होगा, इस पर भी गौर करिएगा प्लीज। अब ये फ्लक्स जो है IFG को रेटेड वैल्यू से घटाने का प्रोविजन, बढ़ाने का प्रोविजन, ऑब्वियसली घटाने का प्रोविजन होगा। देखिए एक्सटर्नल रेजिस्टर आप लगा रहे हैं फील्ड वाइंडिंग के सीरीज में, अगर ये नहीं होता देन रेटेड IFG होता, और REG कुछ भी होगा, ऑब्वियसली टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस क्या होगा, फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस प्लस REG, देन total field winding circuit resistance increases or not, total field winding circuit resistance increases means IFG decreases below the rated, IFG decreases below the rated means corresponding flux भी क्या होगा, corresponding flux भी below the rated जो है वो decrease होगा, corresponding flux जो है decrease होगा, means what, means what about your VT, अगर flux ही decrease होगा, EG जो है decrease होगा, VT decrease होगा below the rated मींस टर्मिनल वोल्टेज को यहां पर घटाने का प्रोविजन होगा। कैसे घटा रहे हैं टर्मिनल वोल्टेज को, देखिए प्लीज फिर से, द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द आर्मेचर ऑफ मोटर इज सेम एज द जनरेटर्स टर्मिनल वोल्टेज। द generated terminal voltage is allowed to reduce below rated by reducing the field flux, which is done by reducing the field winding current IFG, and which is done by simply adjusting the regulator of the field winding. Now you know already you have seen the voltage control technique. VT अगर घटेगा, what about N? N proportional to V minus IARA by फ्लक्स फाई। अब IRA ड्रॉप को अगर नेगलेक्ट कर दें, N प्रोपोर्शनल टू V by phi means directly proportional to applied voltage, inversely proportional to flux, directly proportional to applied voltage। ये VT जो है वो यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है, फ्लक्स को क्या रखना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा। ये फ्लक्स फाई किसका फ्लक्स है, मोटर का फ्लक्स है। मोटर के फ्लक्स को क्या रखेंगे, रेटेड वैल्यू पर रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। मींस ड्यूरिंग द वोल्टेज कंट्रोल टेक्निक this is being employed for controlling the speed of motor below the rated value, the field flux of the DC motor is to be maintained or is kept constant। इसको कांस्टेंट मेंटेन करेंगे, फील्ड फ्लक्स को कांस्टेंट मेंटेन करेंगे। फील्ड फ्लक्स ऑफ मोटर को कांस्टेंट मेंटेन रखने का मतलब है IFM को कांस्टेंट मेंटेन रखेंगे, मींस उस समय REN जो है रेगुलेटर का जो रेजिस्टेंस होगा वो जीरो होगा, सो दैट जो फील्ड वाइंडिंग करंट ऑफ अ मोटर होगा वो रेटेड वैल्यू के बराबर होगा, सो दैट फाई जो है वो रेटेड वैल्यू के बराबर होगा। अब बताएंगे ओनली किसको एडजस्ट करने का प्रोविजन है, मतलब यहाँ पर वोल्टेज कंट्रोल टेक्निक के तहत ओनली वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द आर्मेचर ऑफ मोटर को ही एडजस्ट करने का प्रोविजन, और एडजस्ट करने का प्रोविजन बिलो द रेटेड, अबव द रेटेड, बिलो द रेटेड। सो स्पीड क्या होगा, स्पीड वुड बी एडजस्टेड बिलो द रेटेड वैल्यू, मींस for controlling the speed of DC motor below the rated speed with a Watt-Leonard system of arrangement, armature voltage control technique is employed, and for employing the armature voltage control technique, the field flux of the motor field winding is kept fixed or constant, and the variation in the armature applied voltage of motor is achieved by varying the field flux of the generator। Okay, अब इस मेथड के तहत बात करेंगे व्हाट अबाउट योर टॉर्क एंड पावर। बिफोर दैट, इससे पहले आप ये आप समझ जाइए, स्पीड कंट्रोल एक्शन के दौरान ये पहले ही आपको बता चुके हैं, लोडिंग क्या रखना, लोडिंग कांस्टेंट रखना। ये लोडिंग अगर कांस्टेंट है, लोडिंग अगर फिक्स्ड है, तो आर्मेचर करंट जो IA होगा वो क्या होगा,
कांस्टेंट होगा, फिक्स होगा, सो IA फिक्स्ड है. IA is to be IA is maintained fixed here as loading is fixed. IA fixed है. What about torque? Torque of motor proportional to IA into phi, IA into phi, or you can say phi m, m for motor, m for motor. So IA यहाँ पर फिक्स्ड है और पूरे स्पीड कंट्रोल एक्शन में भी फिक्स था और फिक्स कंसीडर किए थे. व्हाट अबाउट फाई एम? फाई एम को भी क्या रखे यहाँ पर? वोल्टेज कंट्रोल टेक्निक जब एम्प्लॉय कर रहे हैं तो फाई एम को क्या रखे? फाई एम को कांस्टेंट रखे. दिस इज व्हाट योर फाई एम, दिस इज इक्वल टू फाई रेटेड. सो फाई एम को कांस्टेंट रखे, ये भी कांस्टेंट है. मीनिंग इज व्हाट अबाउट टॉर्क? टॉर्क इज आल्सो कांस्टेंट. सो if you are employing the voltage control technique, torque is maintained constant. Now what about power? Power proportional to torque into speed. Speed में variation हो रहा है, controlling the speed itself, so speed में variation है. What about torque? Torque is constant. So constant into variable, obviously variable means meaning is what? Power is variable. So if the motor is or motor's speed is controlled by employing voltage control technique with Ward-Leonard system of arrangement, motor acts as which drive? Constant torque, variable power drive. So torque जो है कांस्टेंट रहेगा ड्राइव का और पावर ड्राइव का क्या होगा? वेरी करेगा, स्पीड का प्रोपोर्शनल होगा, स्पीड का प्रोपोर्शनल होगा. सो दिस इज व्हाट यू ड्राइव, दिस इज व्हाट यू ड्राइव मींस मोटर एंड लोड इज योर ड्राइव. दिस इज योर मोटर ड्राइव, मोटर ड्राइव. ओके, सो मोटर एक्ट्स एज व्हिच ड्राइव? कांस्टेंट टॉर्क, वेरिएबल पावर ड्राइव if the speed is being controlled below the rated by employing voltage control technique with the Watt-Leonard system of arrangement. Now बात करेंगे above the rated value or above the base value. Now you see how to control the speed or how to achieve the speed control action above the rated value or above the base value. So above the base value स्पीड को कंट्रोल करने के लिए कौन सा टेक्निक एम्प्लॉय करेंगे? ऑलरेडी यू हैव सीन फ्लक्स कंट्रोल टेक्निक कैन बी एम्प्लॉयड फॉर कंट्रोलिंग द स्पीड ऑफ मोटर एबव द रेटेड वैल्यू. अब फ्लक्स कंट्रोल टेक्निक एम्प्लॉय करने के लिए करेंगे क्या? मोटर के फ्लक्स को आपको एडजस्ट करने का प्रोविजन प्रोवाइड करना पड़ेगा. मींस इस बार आईएफएम ही जो है IFM is subjected to vary, IFM को ही वेरी करने का प्रोविजन प्रोवाइड करना पड़ेगा. और क्या? रिमेनिंग टू पैरामीटर्स लाइक आर्मेचर करंट मींस रिमेनिंग टू पैरामीटर्स ऑफ द स्पीड डिपेंडिंग पैरामीटर इज और व्हाट? योर अप्लाइड वोल्टेज V एंड RA, आर्मेचर सर्किट रेजिस्टेंस. इसको इनको क्या रखना पड़ेगा? कांस्टेंट रखना पड़ेगा. देखिए कैसे आप अचीव करेंगे फ्लक्स कंट्रोल टेक्निक. सो लिखेंगे फॉर above the rated or for n greater than n rated. Which technique is employed? Flux control technique is employed. Control technique. आप नोट्स को फॉलो करेंगे प्रॉपरली लिखने के लिए नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे, सो आप नोट्स को फॉलो करेंगे. इसलिए यहाँ पर आप समझने कंटेंट को समझने के लिए और समझाने की कोशिश कर रहे हैं सो दैट यू कैन हैव द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स. Okay, so for n greater than n rated, flux control technique is to be employed. अब flux control technique जब employ करते हैं, then field flux is to be kept constant. And field flux को अगर constant maintain रखेंगे, then VT भी क्या होगा? VT भी constant रहेगा. Where phi m is allowed to vary keeping Vt is equal to constant. अब V2 को कांस्टेंट रखने के लिए IFG को क्या रखेंगे? IFG को कांस्टेंट. IFG को कितना के बराबर? IFG को IFG रेटेड के बराबर. मींस
फ्लक्स कंट्रोल टेक्निक के तहत जब आप स्पीड को कंट्रोल कर रहे हैं देन REG 0 होगा, REG 0 होगा, so that IFG can be equal to IFG rated, so that the generator's field current is equal to its rated value, so that जो कुछ भी वोल्टेज जनरेट होगा टर्मिनल वोल्टेज अवेलेबल होगा वो रेटेड टर्मिनल वोल्टेज होगा, एंड द रेटेड फिक्स्ड टर्मिनल वोल्टेज इज टू बी अप्लाइड अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ आर्मेचर। सो आर्मेचर के क्रॉस अप्लाई किया जाने वाला वोल्टेज जो है क्या होगा, फिक्स रहेगा। एंड किसको वेरी कराना है इस बार, फील्ड फ्लक्स को वेरी कराना है। किसका फील्ड फ्लक्स को, मोटर का फील्ड फ्लक्स को वेरी कराना है। मोटर के फील्ड फ्लक्स को वेरी कराने के लिए मोटर के फील्ड वाइंडिंग का रेगुलेटर को एडजस्ट करेंगे, देन ये क्या होगा, IFM वेरी करेगा। अब IFM अगर वेरी करेगा मींस व्हाट, m जो है वो वेरी होगा, m वेरी होगा मींस यू नो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m मींस m वेरी होने से स्पीड क्या होगा, वेरी होगा। अब गौर करिए m को रेटेड से घटाने का प्रोविजन है, रेटेड से बढ़ाने का प्रोविजन है। ऑब्वियसली उसके लिए आपको देखना पड़ेगा जो फील्ड वाइंडिंग करंट है IFM वो रेटेड से घटने का उसको रेटेड से घटाने का प्रोविजन है यहाँ पर, या रेटेड से बढ़ाने का प्रोविजन है। गौर करिए जब भी इसको आप एडजस्ट करेंगे IFM को, आप एक्सटर्नल वेरिएबल रेजिस्टर लगा करके करेंगे। सो टोटल फील्ड सर्किट का जो रेजिस्टेंस है मोटर का वो क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, मींस ज्यादा हो जाएगा ओरिजिनल फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस से किसी भी केस में in presence of the regulator's resistance। ओके अगर रेजिस्टेंस वैल्यू फील्ड सर्किट का रेजिस्टेंस वैल्यू बढ़ गया फॉर फिक्स्ड वोल्टेज डीसी बस का वोल्टेज फिक्स होगा, फॉर फिक्स्ड वोल्टेज IFM क्या होगा, IFM घटेगा। IFM घटने का मतलब जो है फील्ड करेस्पॉन्डिंग फील्ड फ्लक्स जो है क्या होगा, घटेगा। मींस यहां पर भी फील्ड फ्लक्स को घटाने का ही प्रोविजन है, बढ़ाने का प्रोविजन नहीं। और बढ़ाने का प्रोविजन हो भी नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, रीजन इज ड्यू टू द सैचुरेशन लिमिटेशंस। हाँ रेटेड वैल्यू के बियॉन्ड आप चाहते हैं अगर फ्लक्स को इंक्रीज करना देन यू कांट इंक्रीज सिंपली, सिंपली आफ्टर रीचिंग द सैचुरेशन पॉइंट, आफ्टर core is getting saturated, you cannot get the proportional variation of flux in proportional to what, in proportional to the field current। means field current में जितना वेरिएशन करेंगे उसी के प्रोपोर्शनल में फील्ड फ्लक्स में वेरिएशन नहीं संभव होगा। so you are not allowed to vary the flux above the rated। please to remember always you are allowed to vary the flux below the rated। so फ्लक्स को यहाँ पर घटाने का प्रोविजन है, फ्लक्स घटेगा स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा। फ्लक्स रेटेड वैल्यू से के बेलो घटेगा तो स्पीड रेटेड वैल्यू के एबव बढ़ेगा। मींस यू कैन एबल टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ मोटर एबव द रेटेड वैल्यू, एबव द बेस वैल्यू। okay so this is how the speed can be controlled, speed of the DC motor can be controlled both below the rated as well as above the rated। below the rated कंट्रोल करने के लिए आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल टेक्निक एम्प्लॉय कर रहा है। अरेंजमेंट में कोई बदलाव नहीं कर रहा है, अरेंजमेंट से with the same Watt-Leonard system of our arrangement you can able to control the speed both below the rated speed as well as above the rated speed। below the rated speed में आप देखें टर्मिनल वोल्टेज VT को वेरी करना है, जनरेटर टर्मिनल वोल्टेज VT को वेरी करना, VT को वेरी करने के लिए आप क्या किए थे, 5FG को वेरी किए थे, कीपिंग द फील्ड फ्लक्स ऑफ मोटर कांस्टेंट। और इस बार एबव द रेटेड स्पीड को कंट्रोल अचीव करने के लिए क्या किए, फ्लक्स कंट्रोल टेक्निक एम्प्लॉय किए। और फ्लक्स कंट्रोल टेक्निक एम्प्लॉय करने के लिए करना क्या है, VT को कांस्टेंट रखना है। VT को कांस्टेंट रखने के लिए IFG को कांस्टेंट रख रहे हैं, इसके साथ किसका वेरिएशन आप कर रहे हैं, IFM को वेरिएशन कर रहे हैं, सो दैट मोटर के फील्ड फ्लक्स में वेरिएशन आए, मोटर के फील्ड फ्लक्स में एडजस्टमेंट हो। एंड फील्ड फ्लक्स को ओनली घटाने का यहाँ पर प्रोविजन होगा बिलो द रेटेड। सो मोटर के स्पीड को बढ़ाने का प्रोविजन होगा एबव द रेटेड। मीनिंग इज व्हाट, by employing the flux control technique with a Watt-Leonard system of arrangement you can able to control the speed above the base value, above the rated value। okay last voltage control technique में देखे थे
motor acts as or motor drive acts as constant torque variable power drive, where power is proportional to the speed and torque remain constant. But see, if you are controlling the speed above the rated by employing the flux control technique here, then what would be torque here? See, torque proportional to phi into Ia. Torque phi into Ia के proportional है. फ्लक्स फाई यहां पर क्या एडजस्टेबल है, मोटर का फ्लक्स, ये टॉर्क किसका? मोटर का, फाई मोटर का, Ia मोटर का. सो फ्लक्स एडजस्टेबल है, Ia क्या? Ia फिक्स्ड और कांस्टेंट है, एज लोडिंग इज फिक्स्ड. सो व्हाट अबाउट टॉर्क? टॉर्क इज वेरिएबल. व्हाट अबाउट पावर नाउ? सी, पावर प्रोपोर्शनल टू टॉर्क इनटू स्पीड. टॉर्क जो है वेरिएबल है एंड टॉर्क किसका प्रोपोर्शनल? फाई का प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं. फाई का प्रोपोर्शनल n किसका प्रोपोर्शनल होता है? 1 by phi का प्रोपोर्शनल. सो कैन से p is equal to constant. So motor acts as constant power variable torque drive. Means with the Ward-Leonard system of arrangement, if the speed of the motor is controlled by employing the flux control technique, motor acts as or motor drive acts as constant power variable torque drive. So as a whole, पूरे कंक्लूजन की बात करें, पूरे स्पीड कंट्रोल टेक्निक में आप देखें, जब कभी आप मोटर के स्पीड को कंट्रोल कर रहे हैं below the rated value by employing any of the method, is you can or simply motor acts as constant torque variable power drive, whereas if you are controlling the speed of motor above the base value, motor acts as constant power variable torque drive. How the variation of torque and power with respect to the speed variation is there? Let's see please, that can be depicted in diagram. Let's see here. देखिए, you see the variation of torque and power. Suppose this is your base speed, n rated or n base. On x-axis, we are going to plot speed. Simply this is your speed axis. And y-axis पर प्लॉट करेंगे पावर वेरिएशन को दिखाएंगे या तो टॉर्क वेरिएशन दिखाएंगे और दोनों का वेरिएशन दिखाएंगे. See, this is your torque below the rated. जब स्पीड का कंट्रोल कर रहे हैं below the rated, motor acts as which drive? Constant torque variable power drive. So torque is constant. What about power? Power is variable. This is your torque. What about power? Power is variable. Power proportional to what? Speed only. So this is your power. देखिए, किसी भी खास स्पीड पर पावर को ज्यादा दिखाए हैं टॉर्क से. Why? Because power is equal to product of टॉर्क एंड स्पीड. सो किसी भी पॉइंट पर अगर रेटेड वैल्यू पर बात करें तो एट रेटेड स्पीड व्हाटएवर द पावर इज देयर दैट विल बी मोर देन द टॉर्क. यस नो? ओके, एट इंटरमीडिएट स्टेज ऐसा नथिंग कैन बी देयर, बट एट रेटेड वैल्यू द पावर शुड बी ग्रेटर देन टॉर्क. सो इसीलिए इसको क्या दिखाएं? ऊपर दिखाएं. बट पावर इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड, p प्रोपोर्शनल टू n only. And here t is constant. Up to rated. Now above rated की बात करें, above rated torque is variable and torque is proportional to what? Torque is proportional to phi, where phi proportional to 1 by n, means torque speed relationship is what? Rectangular hyperbolic. So this is what the variation of torque with respect to speed above the rated. And what about power? Power would remain constant now above the rated. So below the rated, which control technique is employed here? Voltage control. V control लिख रहे हैं, means voltage control. और above the rated कौन सा control technique employ किए? Flux control यहाँ लिख रहे हैं, phi control. Please do remember. So below the rated voltage control technique is employed
and with voltage control technique, motor acts as constant torque variable power drive, and above the rated speed control, flux control technique, or above the rated speed flux control technique is employed, and with flux control technique, motor acts as constant power variable torque drive, where T inversely proportional to speed. Okay. So this is what your Ward-Leonard method of speed control. Remember please, this particular method is basically a voltage control technique, and you can have the wide range of speed control with this Ward-Leonard system of arrangement. Only one drawback, means one of the drawback of this particular method or system is there, that is it takes a huge installation cost. इसके लिए ओनली आपको below the rated above the rated स्पीड कंट्रोल अचीव करना है, उसके लिए आपको क्या मोटर का स्पीड को कंट्रोल करना है। मोटर का स्पीड को कंट्रोल करने के लिए अलग से जनरेटर यूज किए, थ्री फेस एसी मोटर यूज किए, एसी सप्लाई सिस्टम यूज करना पड़ रहा है। मींस व्हाट, द एंटायर सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट टेक्स और इट्स अ ह्यूज इंस्टॉलेशन कॉस्ट। सो इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो है वो ज्यादा होता है। दिस इज व्हाट वन ऑफ द drawback, one of the disadvantage of this particular method of speed control. Although this particular method, with this particular method of speed control, you can have the wide range of speed control. Do remember. Okay, so we'll see next. Thank you for this particular session. Okay.